بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور چینل، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے بھی ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہوں گے۔ زندگی کا سفر جاری و ساری ہے، وقت اتنا تیزی سے گزر رہا ہے کہ لگتا ہے کہ وقت ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو گیا ہے اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ابھی کل کی ہی بات لگتی ہے کہ جیسے شادی سے پہلے امی ابو کے گھر رہتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے اور کسی چیز کا ہوش بھی نہیں ہوتا تھا، تو اب شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں اور ماں باپ سے دور ہیں۔ لڑکی کی زندگی بھی کتنی عجیب ہے، ماں باپ کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی اور ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی۔ لڑکیوں کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم بھی ہوتا ہے شادی سے پہلے کہ وہ ان کا دل کرتا ہے کہ باہر گھومیں پھریں، کیا ہر ٹائم گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں ہم لوگ، امی ابو سے کہنا کہ باہر چلیں۔ لیکن پھر ایسا ٹائم بھی آتا ہے زندگی میں شادی کے بعد کہ بس دل کرتا ہے کہ بس صرف اور صرف امی ابو کے گھر جائیں، کہیں بھی گھومنے پھرنے نہ جائیں، بس جتنا ٹائم ملے اگر گئے ہیں میکا گئے ہیں تو صرف اور صرف امی ابو کے گھر پہ ہی رہیں۔ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں جب جاتی ہوں ملتان تو میں کہیں بھی نہیں جاتی، نہ کسی کزنز کے گھر، نہ ماموں، کسی کی طرف بھی نہیں جاتی۔ صرف میرا دل کرتا ہے کہ بس میں امی کے گھر آئی ہوں تو صرف امی کے گھر ہی جاؤں، وہاں کوئی آ گیا تو مل لوں، ورنہ امی ابو کے گھر سے باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ویسے تو امی ابو کی یاد سے کبھی بھی دل خالی نہیں ہوا، لیکن آج کل اتنی زیادہ یاد آئی ہوئی تھی کیونکہ میں لاسٹ ٹائم کوئی اپنے امی ابو سے بقرہ عید پہ ملی تھی اور اب مجھے کوئی 5 to 6 منتھ ہو چکے تھے اپنے امی ابو کو دیکھے ہوئے، ملے ہوئے، تو بس دل کر رہا تھا کسی نہ کسی طرح اڑ کے پہنچ جاؤں ان کے پاس۔ تو بس پھر کسی ریزن کی وجہ سے وہاں جا تو نہیں سکتی تھی، لیکن وہاں کے لیے اپنے امی ابو کے لیے، امی ابو کے گھر کے لیے ایک ولاگ تو بنا ہی سکتی تھی۔ تو دیکھیں صبح کا آغاز کتنا خوبصورت ہے۔ صبح پرندوں کے چہچہانے کی آواز اتنی سودنگ تھی کہ دل کو سکون مل رہا تھا۔ اچھا تو جناب، پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ ولاگ ہے کوئی جون جولائی کا، اور میں کسی ریزن کی وجہ سے اس پہ وائس اوور نہیں کر سکی تھی، تو اب میں وائس اوور کر رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی وہیں پہ ہی ہوں، ساری آوازیں سن رہی ہوں، بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جو پردیس میں رہتے ہیں، جو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، وہ کیسے رہ سکتے ہیں اتنا ٹائم بعد۔ مجھے فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ میں 5 to 6 months لگ گئے ہیں کہ میں امی ابو سے یا پیچھے ملتان ملنے نہیں گئی سب سے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے دل کو کیسے کنٹرول میں کیا ہوا ہے کہ کبھی کبھار تو رونا بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھار بہت زیادہ میں چڑچڑی سی ہو جاتی ہوں، بچوں کے ساتھ بھی کوشش یہ کرتی ہوں کہ نہ ہوں، لیکن کیا کروں، دل ہے کہ سمجھتا ہی نہیں، بہت شدید قسم کی یاد آتی ہے۔ تو میں سچ میں جو پردیس میں رہتے ہیں ان کی ہمت کو سلام کہتی ہوں کہ وہ اپنوں سے، اپنے ماں باپ سے اسپیشلی اتنا ٹائم دور رہتے ہیں۔ اور آج کے دن جب مجھے بہت شدید یاد آ رہی تھی امی ابو کی اور میں اس وجہ سے صبح رو بھی پڑی، تو پھر مجھے یاد آیا کہ آج میں کیوں نہ اس ولاگ پہ وائس اوور کروں جو میں نے پہلے رکھا تھا اور اس پہ میں نہیں کر سکی تھی کسی وجہ سے، تو کیوں نہ آج اپنی یادیں تازہ کروں اور ان ویڈیوز کو دیکھوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں وہ ولاگ کے تھرو۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور فرسٹ ٹائم ولاگ دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اگر آپ کو ولاگ اچھا لگے یا ولاگ میں کوئی بھی بات اچھی لگے تو میرے ولاگ کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اچھا تو جناب، یہ ولاگ ہے جون کا اور بہت ہی خوبصورت صبح تھی امی ابو کے گھر میں، اور صبح جب میں جاگی تو پرندوں کو چہچہاتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ بہت ارلی مارننگ نہیں ہے، کوئی 9 بجے کا ٹائم ہے، تو امی ابو کے گھر میں تو ایسا چلتا ہی ہے کہ جاگ جاؤ، جتنا بھی لیٹ سو جاؤ یا جتنا بھی لیٹ جاگ جاؤ، ریلیکس ماحول ہوتا ہے، چل تو تھوڑا ہوتا ہے نا کہ امی ابو کو بھی ہوتا ہے کہ چلو اتنے عرصے بعد آئی ہے تو جتنا ریلیکس کرنے کر لو۔ اور اب بھی جب میں سو کے باہر نکلی تو ابو جان بیٹھے ہوئے تھے، ابو جان نے کہا چلو آؤ میرا بیٹا جاگ گیا، آ کے بیٹھو، ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔
तो मैंने कहा अबू जान बस मैं अभी हाथ मुँह धो के आई। तो अबू जान ने कहा क्या शेर कोई मुँह हाथ धोते हैं, चलो आ जाओ ऐसे ही आ जाओ। ये मजाक था, लेकिन बहुत ही क्यूट क्यूट सी यादें अम्मी अबू के घर में, अबू जान के साथ, अम्मी के साथ, बहनों के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय की। और आज जब याद करते हैं तो दिल को कुछ होता है कि पता नहीं फिर हम कब इकट्ठे सब बहनें मिलेंगी, अम्मी अबू के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करेंगे। अब तो खैर बच्चे भी हो गए, उस तरह से टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हम लोग इकट्ठे। अभी तो बंदा बात करने लगता है, बच्चों का कोई ना कोई काम आ जाता है या कोई रोना धोना शुरू हो जाता है। तो लेकिन ये भी एक ज़िंदगी का एक न्यू चैप्टर है, इसकी एक अलग सी खुशी है, ऐसा अलग सा सुकून है। तो ज़िंदगी के हर चैप्टर को एंजॉय करना चाहिए, खुल के जीना चाहिए। और जनाब फिर नाश्ता करने के बाद मैंने घर में 2-3 चक्कर लगाए और उसके बाद मैंने अम्मी जान के इतनी मेहनत से प्यारे प्यारे प्लांट्स देखे जो बहुत ही मेहनत से लगाए गए थे। और फिर मैं साथ साथ अम्मी जान से डिस्कस कर रही थी कि मुझे कौन सा लेके जाना है, कौन सी टहनी चाहिए, कौन सी नहीं अपने घर में लगाने के लिए। तो ये शौक़ तो अम्मी की तरफ से आया बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बच्चे फुल तैयारी में थे, अपने ड्रेस में आ चुके थे, नहाने की तैयारी करते फिर रहे थे, क्योंकि अब थोड़ी देर तक अम्मी ने ट्यूबवेल चलानी है। घर में एक छोटा सा ट्यूबवेल बनवाया हुआ है ताकि बच्चे एंजॉय करें, प्लांट्स को भी पानी लग जाए। तो बच्चे फुल तैयारी में थे और वो बस अम्मी जान से बार बार ज़िद कर रहे थे कि अम्मी जान जल्दी से हमें चला देना ट्यूबवेल ताकि हम नहाएं और मज़ा करें। तो फिर अम्मी जान अब कैसे टाल सकती थी बच्चों को, हमें तो फिर भी टाल देती थी बहुत सारी चीज़ों पे। लेकिन मैं हैरान होती हूँ ये जब यही माएँ जब नानो बनती हैं या दादो बनती हैं कि इतना दिल नरम हो जाता है कि ख़ुद तो इनकी सारी फरमाइशें पूरी कर ही रही होती हैं और साथ ही साथ हमें भी इतनी इजाज़त भी नहीं देती कि इनको गुस्सा करें, थोड़ा डांट दें या आंखें भी दिखा दें। और फिर जनाब अम्मी जान ने ट्यूबवेल चला के दी बच्चों को और पानी इतना खूबसूरत लग रहा था, ठंडा ठंडा ऐसे लग रहा था कि कोई जैसे मिनी लेक्स नहीं, या जिसको हम कहेंगे छोटी छोटी नहरें थीं घर में, और बड़ा ही प्यारा मंज़र लग रहा था। प्लांट्स को पानी भी लग रहा था, पानी की बोतल्स भी भरी जा रही थी, साथ ही साथ बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, नहा रहे थे। और अरहम अहमद के तो सबसे पहले होता ही यही काम है इधर आने का कि अम्मी जान हमें ट्यूबवेल चला दें, हमने पहले नहाना है, अम्मी जान पहले ये काम कर दें। और फिर अम्मी जान कैसे हुक्म की अदूली कर सकती हैं, तो बस फिर अम्मी जान ने फटाफट से इनका हुक्म माना और फ़ौरन को ट्यूबवेल चला के दिया ताकि ये ज़रा बिज़ी हो जाएं। और फिर साथ ही साथ हमने बोटल्स भी जमा की, बोटल्स भी यहीं से फ़िल की, क्योंकि ये बहुत साफ़ पानी और ठंडा पानी होता है। तो घड़े वगैरह जो भी घर में पानी भरने की चीज़ें होती हैं वो हम भर लेते हैं, यहीं से ही यूज़ करते हैं खाने पीने के लिए स्पेशली। और मुझे वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है अगर किसी सायादार दरख्त के नीचे कोई घड़ा पड़ा है तो उसका पानी फ्रिज से भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। मतलब जितना भी ठंडा पानी हो, लेकिन जो घड़े के पानी का जायका होता है, खुशबू होती है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं आप में से किस किस ने घड़े का पानी पिया हुआ है और किस किस को पसंद है घड़े का पानी। बच्चे तो बस करने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उनका बस नहीं चल रहा था कि बस आज पूरा दिन ही पानी में बैठे रहें। लेकिन अब मेरी बस हो गई थी तो मैं काफ़ी देर इनके साथ एंजॉय किया, बातें की और पानी की बोतल्स भी फ़िल की हमने, अम्मी और मैंने इकट्ठे मिल के। उसके बाद हमने रूह अफ़ज़ा वाला शरबत भी पिया, जिसको हम जामा शीरी का शरबत था, मुझे अभी भी याद आता है, जामा शीरी का शरबत था। रूह अफ़ज़ा मुझे पसंद नहीं, पता नहीं क्यों। उसके बाद लीची भी खाई थी और उसके बाद मैं इधर आई तो बच्चों को काफ़ी ठंड लग रही थी, मतलब कि वो शायद 1-1.5 घंटे से मुसलसल ठंडे पानी में नहा रहे थे। लिप्स उनके ब्लू ब्लू से हो रहे थे, लेकिन उनकी फिर भी बस नहीं हो रही थी। और ये हाल देखते हुए तो मैंने सोचा कि बच्चों को अब बस करवा देती हूँ और उनसे कहती हूँ बस
निकलो। जैसे ही मैंने ये बात की उन्होंने कहा मम्मा थोड़ी देर और रुक जाए, 1-2 डुबकी और लगाने दें। तो बस फिर बच्चे जल्दी जल्दी नहाए और जितना उनका रह गया था दिल भरना तो उसके बाद नहाने के बाद फिर मैं उनको बाहर निकाल के लेके गई। लेकिन बच्चों का बस नहीं चल रहा था। मैं एक को पकड़ के जाती थी तो दूसरा भाग के चला जाता था, दूसरे को पकड़ के लाती थी तो पहले वाला फ़ौरन पानी में चला जाता था या कुछ ना कुछ अपने कीचड़ से कपड़े या पाँव ख़राब कर लेता था। तो बस जैसे तैसे करके मैंने बच्चों को वहाँ से निकाला और उनको चेंज करवाया और उसके बाद हमने दोपहर के खाने की तैयारी की। बिल्कुल ही सिंपल सी सालन रोटी और अम्मी ने तंदूर पे रोटियां बनाई। बहुत ही मज़ा आया अम्मी जान के साथ और बहनों के साथ टाइम स्पेंड किया और बहुत सारी बातें भी की क्योंकि टाइम कम था। हमने वापस लाहौर भी जाना था और उसके लिए हमें घर वापस जाना था। हमने वहाँ पैकिंग करनी थी। थोड़ा सा टाइम जो है मैंने अपने घर में भी घर वालों के साथ उधर भी स्पेंड करना था। तो बस जल्दी जल्दी हमने दोपहर का खाना भी रेडी किया और खूब सारी अम्मी के साथ उस दौरान भी काफ़ी गपशप की मैंने। वैसे तो हम अपने माँ बाप का एहसान कभी भी नहीं उतार सकते, ज़िंदगी भर नहीं उतार सकते, लेकिन मैं फिर भी अपने अम्मी अब्बू का थैंक यू करना चाहती हूँ कि हमें उन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी खुशियाँ दी और इतना एतमाद ट्रस्ट दिया कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। और ये पेरेंट्स भी कितनी अजीब चीज़ होते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग अपने से बढ़ के अपने से आगे किसी को बढ़ता देखना चाहें या ना चाहें, लेकिन अपनी औलाद को तो आगे बढ़ता ही देखना चाहते हैं, हमेशा सक्सेसफुल और अपने से अगले लेवल पे देखना चाहते हैं। और किसी के पेरेंट्स इतने मोटिवेटेड हों, स्पेशली किसी लड़की के पेरेंट्स इतने पैशनेट हों, तो उस लड़की का फ़र्ज़ बनता है कि वो कामयाब हो के ज़रूर दिखाए उनको। और पिछले दिनों मुझे अपनी अम्मी जान पे इतना ज़्यादा प्यार आया, हालांकि मैं एक फुल अटेंशन से पूछ रही थी अम्मी जान से कि अम्मी जान मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको कुछ ख़रीद कर दूँ। तो अम्मी जान ने कहा नहीं मुझे तो किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरा दिल कर रहा है ना, आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए। तो अम्मी जान ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो कि कुछ खा लो अपनी पसंद का। मैंने कहा अम्मी मैं तो खाती रहती हूँ फिर भी। अम्मी ने कहा नहीं कोई फ्रूट लेके खा लो, सेहत अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी बिल्कुल ठीक है। मतलब कि अम्मी जान बज़िद थी कि बस मुझे कुछ ना दिलाओ, अपने ऊपर लगा लो, वो जो पैसे जमा किए हुए हैं अपनी ज़ात पे लगा लो और कुछ खा लो। स्पेशली उनका ये था कि कुछ अच्छा खा लो, कुछ अपनी पसंद का जो तुम्हारा दिल करे अपने लिए कुछ ले लो। और इससे भी ज़्यादा क्यूट बात ये लगी कि जब उन्होंने कहा कि बीफ या मटन लेके खा लो, यकीन करें मेरी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। अम्मी जान आप कितना प्यार करती हैं ना हम सब से कि मतलब कि माँ बाप के लिए हम जितने भी बड़े हो जाएं, औलाद बड़ी हो जाए, लेकिन उनके लिए हम छोटे बच्चे ही होते हैं। उनको पता है कि हम इधर नहीं लेके खाते क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब को भी इतना पसंद नहीं है बीफ या मटन। मतलब कि अपने माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो मैं आज अपने अम्मी अब्बू का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ज़िंदगी में हर चीज़ मुहैया की, प्यार, मोहब्बत, एतमाद और इससे भी बढ़ के हमारे लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढा जो कि मुझे मेरे पेरेंट्स की तरह ही कामयाब देखना चाहते हैं आगे। अल्लाह ताला मेरे पेरेंट्स को और आप में से जो जो भी मेरे व्लॉग को देख रहे हैं उनके पेरेंट्स को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।